کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ایک مرتبہ آپ سب درود پڑھتی ہوئی آگے تشریف لے آئیے تاکہ یہ جو گیپ ہے نا یہ نہ رہے۔ سب سلیقے سے جب فرش ازہر پر ہم 1400 سال گزر گئے، ہمیں کم از کم سلیقہ تو آنا چاہیے نا، اتنا تو ممبر سے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ایک مرتبہ درود پڑھیے اور آگے آ جائیے تاکہ جو پیچھے آئے تو ان کو رحمت نہ ہو۔ محمد محمد وعجل فرجهم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ابو القاسم محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي يرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اور ذات باری تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے اذان امام۔ آپ میں سے بیشتر لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ابتدا کرتی ہوں ہمیشہ اپنی مجلس کی، اور ابتدائی حصہ مخصوص کرتی ہوں خصوصیت کے ساتھ اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ذکر مبارک صلی اللہ محمد وعجل فرجهم، جس کی بنیادی وجہ سے آپ سب واقف ہیں، بخوبی واقف ہیں کہ ہم ظہور امام کے لیے سنیہ سازی کرنے والوں میں شامل ہو سکیں، ان کے ظہور کی راہ ہموار کرنے والوں میں شامل ہو سکیں، اور یہ بات بچہ بچہ جانتا ہے کہ کس طرح ہمیں تیار ہونا ہے۔ یقیناً یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم بندوق لے کر سرحد پہ جا کے کھڑے ہوں گے اور مولا کی مدد کریں گے، نہیں، ہماری مدد کس طرح ہوگی، ہم اپنی بساط کے مطابق کیسے مدد کر سکتے ہیں کہ اپنی کردار سازی کر کے، ہم اپنے نفوس کی تربیت کر کے ہم امام کے لیے مدد فراہم کر سکتے ہیں، ہم ناصرین امام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور یہی فرش ازہر سے ہمیں لے کر اٹھنا ہوتا ہے کہ جو ان 2.25 مہینے میں جو ایام ازاں میں جو کچھ فرش ازہر سے ہم روحانی تبرک لے کر اٹھتے ہیں وہ پورا سال ہمارے کام آ سکے، پورا سال مددگار ثابت ہو سکے کردار سازی میں۔ تو ہم بارہا کہتی ہوں کہ یہ کوشش اس لیے ہے، یہ امتساز ایام ازاں میں اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ دشمن بہت زیادہ تیاری کر رہا ہے، ہم غافل ہیں، اور بس اسی غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ دشمن کیوں اتنی چالیں چلتا ہے، کیوں اتنا عیار ہے، کیوں اتنا دشمن ہے ہمارا؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ 57 اسلامک اسٹیٹس ہیں، امت مسلمہ کی فکر نہیں ہے، سب سے زیادہ دشمن کو خطرہ کس سے ہے؟ مراجعین کرام اور منتظرین امام، بس یہ دو ہیں جن سے دشمن کو خطرہ لاحق ہے۔
تو اسے پتا ہے اور آج اس کا آؤٹ پٹ ہمیں نظر آ رہا ہے نا. یہ تو اب کتابوں کی بات تو رہی نہیں اس وقت. جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے ہمیں نظر آ رہے تھے کون سا ملک ہے اور کون تھا کہ جس نے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارا. اتنی بڑی امت مسلمہ میں سے کس نے یہ جرأت کی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دشمن کو یہیں سے خطرہ ہے نا سب سے زیادہ. اور یہی وجہ ہے کہ دشمن چالے چل رہا ہے. دیکھیے یہی ہے جو بنی اسرائیل ہے نا ان کو امام وقت سے دشمنی نہیں ہے, انہیں 12 ائمہ سے بھی اتنی دشمنی ہے. اصل دشمنی جو ہے وہ آخری رسول سے ہے. دشمنی چلی وہاں سے رہی ہے اس لیے کہ وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہم تو سب سے لاڈلی قوم ہیں اور بھائی ان کے لیے تو منو صلہ اترا کرتا تھا ہمارے لیے تو نہیں اترتا. تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم تو سب سے لاڈلی قوم ہیں, ہمیں حکومت کا حق ہے پوری دنیا پر, ہمیں چھائے رہنا چاہیے, مسلمانوں کو غالب نہیں آنا چاہیے, ہمیں غالب ہونا چاہیے. تو وہ آخری رسول کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے. سورہ بقرہ پڑھیے تو پوری واضح اس میں یہ ساری تفصیل بیان کی گئی ہے کہ آخری رسول کا انہیں اچھی طرح پتا تھا کہ آخری رسول میں آنا ہے, مگر وہ کیا چاہتے تھے کہ اللہ ان کی نسل سے بھیجے. اور ہمیں پتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارے نبی حضرت اسحاق کی نسل سے تو نہیں آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے ہیں. تو اصل دشمنی آخری رسول سے شروع ہوئی کیونکہ ان کی نسل سے نہیں بھیجا. وہ تو اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے تھے. تو جب ان کی نسل سے آخری نبی کو نہیں بھیجا تو بس اب انہیں لگا کہ یہ مسلمان غالب آ جائیں گے. تو بس انہوں نے چالیں چلنا شروع کی اور ان چالوں کو ہی بس ہمیں پہچانتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ایک چال جو سب سے پہلی چال انہوں نے کیا چلی, انہوں نے اپنی جو ان کی بس میں ہے وہ چالیں چلتے آ رہے ہیں اور مسلسل چل رہے ہیں. پہلی چال کیا چلی کہ خوریزی. خوریزی آپ نے دیکھا کہ کس کس طرح ہمارے ہی امام بارگاہوں میں کیسے کیسے بلاس ہوئے, کیسے کیسے فائرنگ ہوئی, لیکن مقابلہ ہوا. ایسا تو نہیں ہوا کہ جو بلاسٹ ہوئے یا فائرنگ ہوئی تو اس سے کوئی مجلسیں رک گئے, جلوس رک گئے, عزاداری رک گئی, کچھ بھی نہیں رکا. وہ چال انہوں نے چلی لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سے اس خوف سے نکل آئے. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ وائرس آیا, یہ کووڈ کا زمانہ ہم نے دیکھا. تو اس میں بھی کیا ہوا کہ حج موقوف, سارے ایئرپورٹ بند, عمرے موقوف, سب کچھ بند ہو گئے, لوگ گھروں میں محصور ہو گئے. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس خوف سے بھی لوگ باہر نکل آئے. یہ چال بھی انہوں نے چل کر دیکھ لی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے اخلاقی پستی دینا شروع کیا. اب وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے بہت اچھی طرح اس وقت معاشرے میں نا کہ روٹی مہنگی ہو گئی, فون کا پیکٹ سستا ہو گیا. اب پوری رات لگی رہی. پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا مخصوص جگہیں ہوتی تھی جہاں غلط کام کرنے کے لیے جایا جاتا تھا. اب تو ہاتھ میں ہے. اب کیا بچے, کیا نوجوان, کیا بوڑھے, کیا شادی شدہ, کیا غیر شادی شدہ, سب آخری حدوں پر اخلاقی پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے گھر ٹوٹ رہے ہیں. معاشرے میں اتنی ابتری ہوتی چلی جا رہی ہے کہ رشتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں, صرف اس کی وجہ سے یہی اخلاقی پستی کہ اگر صحیح تربیت نہیں ہوئی, اگر بیدار نہ کیا گیا, اگر ممبر پر آ کر روایتی مجلس پڑھ کر اتر جائیں کہ بس صرف فضائل بیان کرنے, مسائل بیان کرنے, نہیں. مولا کہتے ہیں کہ میرا مومن وہ ہے, میرا چاہنے والا وہ ہے جو کرنٹ افیئر سے آگاہ رہتا ہے, جسے پتا ہوتا ہے کہ زمانہ جا کدھر رہا ہے. تو مومن کو تو بیدار رہنا ہے. یہ ساری چالیں جو دشمن چل رہا ہے ہماری نظر ان پر رہنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو بچانا ہے, اپنے گھروں کو بچانا ہے. تو دشمن یہ چال بھی چل چکا. تو یہ ساری چالیں جو دشمن چلتا جا رہا ہے, مہنگائی یہ بھی ایک چال کے اتنا الجھا دو, معاش کی فکر میں یہ اتنا الجھا دو کہ یہ ضرور کی تیاری سے غافل ہو جائے. اور مہنگائی سے ہمارے پاکستان میں تو نہیں, سب پوری دنیا میں مہنگائی کی عالم ہے. مگر کیا ہے کہ وہاں حکومتیں اس طرح کی نہیں ہے, ہمارے یہاں کی طرح لوٹ کا سوٹ نہیں ہے. لہٰذا وہاں وہ بہرحال اپنی عوام کو سپورٹ کرتی ہیں, تو ان کو اتنا زیادہ سفر نہیں کرنا پڑتا. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ زیادہ سفر تو ہمارے لوگ جو ہے اسی میں الجھے ہوئے ہیں
क्योंकि फीस कैसे देनी है बच्चों की, अभी घर का किराया कैसे देना है, अभी बिल्स कैसे देने, इसके आगे हमारा जहन जाता ही नहीं कि हम क्या करें और हमें करना क्या है। तो दुश्मन इन चालों में हमें उलझाता चला जा रहा है। मतलब चलिए अब उसकी चालें खत्म, यही चालें थी जो दुश्मन में चल रही थी, अब इससे आगे और क्या होगा। खुरेजी और ये सारा जुल्म सितम, अखलाकी पस्ती, महंगाई, अफलास, ये सब के बाद इसके बाद और कौन सी चाल बचती है। लेकिन हमारे पास अभी एक चीज है, इंतजार। हम इंतजार करने वाले हैं ना, हम मुंतज़िरे इमाम हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दुश्मन अपनी चालें चल रहे हैं, हमें अपनी तैयारी करनी है, उसे अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करना है। और हमें पता है कि अलामतें बड़ी तेजी से जाहिर होती जा रही हैं और इमाम का ज़हूर बहुत करीब है। पहले अलामतें बहुत देर में गुजरा करती थी, बड़ी जल्दी जल्दी अलामतें गुजर रही हैं और इमाम का ज़हूर करीब है। अच्छा, हम ये सबको पता है, सब जानते हैं कि जब इमाम का ज़हूर होगा, इमाम की हुकूमत कायम होगी, उससे पहले मनादी निदा देगा, है ना, मनादी निदा देगा, ये सबको पता है ना। एक आसमानी निदा सुनाई देगी और जब वो निदा सुनाई देगी तो किसी को जल्दी सुनाई देगी, किसी को देर में सुनाई देगी, ये भी सब जानते हैं। और एक मजलिस में तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोग थे जो हमने ये बताया था, लेकिन दोहराती इसलिए क्योंकि ये आपके साथ नहीं यहाँ की आज की आखिरी मजलिस होती है, पहले 8 बजे लगन को हुआ करती थी, लेकिन आज क्योंकि यहाँ आखिरी मजलिस होती है अपने महंगे वालों के साथ, लिहाजा हम हमेशा इस फशे अदा पर, अब जब से ये आखिरी मजलिस होने लगी है मेरे लिए, तो यहाँ हम अहद करके उठते हैं पूरे साल के लिए, याद आ गया कि हम अहद करते हैं कि एक नेकी को अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे और एक गुनाह को अपने से दूर करने की कोशिश करेंगे। वो पूरा साल हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ फशे, और जब फशे अदा की जो तासीर होती है कि हम घर में ही अहद करें, वो पूरा होने में मुश्किलात आ सकती है, लेकिन फशे अदा पर क्योंकि मासूमीन मौजूद होते हैं, लिहाजा जब यहाँ अहद करते हैं ना तो मासूमीन मददगार बन जाया करते हैं। पूरा साल हमारे साथ मासूमीन की मदद रहती है। तो वो कौन से दो लोग होंगे कि जिन्हें बहुत जल्दी इमाम की आवाज आएगी। अब कुछ लोगों को तो याद आ गया होगा जो वहां उस मस्जिद में मौजूद थे। मुझे नहीं लग रहा कि चेहरे से तो नहीं लग रहा कि किसी को याद आया, और अगर याद नहीं आया तो फिर प्रैक्टिस भी शुरू नहीं की होगी, है ना। बहुत सारे तो नए चेहरे, लेकिन वो चेहरे मैं पहचानती हूँ कि जहाँ मैंने ये बयान किया था वहां कौन कौन था, लेकिन उनके चेहरे से भी महसूस नहीं हो रहा था। देर आए दुरुस्त आए, आज दोबारा इसीलिए दोहरा रही हूँ, नए चेहरे भी है तो लिहाजा इसी को बस पकड़ लीजिएगा और कोई भले तो ना भी कीजिए कि वो कौन से लोग होंगे कि जिन्हें ये आवाज सबसे जल्दी सुनाई देगी। मैं तो इस वक्त आपके सामने मुखातिब हूँ आपसे, मैं जिस पर सबको एक ही तरह मेरी आवाज आ रही है, मगर जब इमाम की ज़हूर की निदा होगी तो किसको सबसे पहले आएगी? तो सबसे पहले क्या होगा कि जो जितनी जल्दी मुसल्ले पर आएगा मस्जिद की आवाज को, जल्दी वो मुसल्ले पर आएगा उतनी जल्दी उसके कानों में इमाम की आवाज आएगी। मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाजिल फरज। मोहम्मद हाँ बिल्कुल, अब सब याद रखिएगा इशारे के साथ। तो जो सबसे पहले मुअज्जिन की आवाज को सुनकर जल्दी मुसल्ले पर आएगा उतनी जल्दी वो इमाम की आवाज को सुनेगा, यानी जो निदा दी जाएगी उसको सुनेगा। कोई बात नहीं, अगर हम अभी नहीं ये प्रैक्टिस करते हैं तो बहरहाल कहती हूँ बस जब
یہ بات بیان کی جا اسی دن عہد کر لیجیے، اور اب اسپیشل اگر سے ہم اور کچھ عہد نہ کر کے اٹھے تو یہی عہد کر کے اٹھ جائیں کہ ہم فوراً جیسے ہی ہمارے کانوں میں موضوع کی آواز آئے گی ہم یا نماز پر آ جائیں گے، کیونکہ یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اس لیے بارہا ہمیں اقرار کرنا چاہیے کہ یہ ہماری کمیونٹی کی کوتاہی ہے کہ اچھا ملا کے پڑھنی ہے تو بس تو پڑھ لیں گے، نہیں، جیسے ہی مؤذن کی آواز آئے مصلی پر آ جائے۔ یہ وہ دور ہے کہ جہاں کبھی دیر نہیں ہوا کرتی، جب بھی آ جائیے، مگر یہ نہیں پوچھتے کہ کیا کر کے آئی ہو، جو بھی کر کے آئی ہو بس آ گئی ہو تو آ گئے، بس پھر مولا گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اور جہاں ہمارے سامنے موجود ہے، مثال موجود ہے کہ جب وہ پلٹ کر آ گئے تو پھر مولا نے کچھ نہیں پوچھا، قیامت تک کے لیے علیہ السلام بنا دیا۔ محمد تیزی سے آگے بڑھنا کیونکہ مجھے موضوع سے متصل ہونا ہے کہ دوسری کیا چیز ہے، دوسرے کون لوگ ہم نے کہ جن کو سب سے جلدی آواز آئے گی ایمان کی، کون لوگوں کے بچیاں سامنے بیٹھی ہیں، بچوں کو یاد رہتا ہے تو بچیوں کو یاد رہنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے جب ماں باپ پکارے تو یہ تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ بچی نے یہ بات یاد رکھی ہے کہ جب ماں باپ آواز دیں تو جو بچے سب سے پہلے جتنی جلدی جی کہتے ہیں بس وہ اتنی جلدی ماں کی آواز کو سنیں گے۔ اب پھر وضاحت کروں ماں کی طرح کہ بچیوں سے مطلب صرف بچیاں نہیں ہیں، آپ یہ نہیں سمجھیے گا کہ ہم تو نانی بن گئے تو دادی بن گئے، ماں باپ حیات ہیں تو ہم بچے ہیں، خدا سب کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے۔ تو جو ماں باپ کی آواز پر جتنی جلدی جی کہے گا اتنی جلدی وہ امام کی آواز کو سنے گا۔ تو بس عزیزان ایمان بارگاہ الہی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ پاک پروردگار ہمیں صحیح معنی میں امام کے ناصروں میں شامل کر دے، بارے الہ پاک پروردگار ہمیں صحیح معنی میں امام کے اطاعت گزاروں میں شامل کر دے، ہمیں ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو امام کا سچا خدمت گزار بنا دے۔ امام سمانہ کلام میں نے سورہ اسد کی آیت کا شرح حاصل کیا۔ پروردگار عالم عیسائی مبارکہ میں کیا ارشاد فرما رہا ہے، ہوئے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ وہی ہے، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اور یہ دین تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اب اللہ یہاں پیشن گوئی کر رہا ہے، پروردگار عالم پیشن گوئی کر رہا ہے کہ بہرحال دنیا کا خاتمہ دین اسلام کے غلبے پر ہی ہونا ہے۔ تو امام دیکھیے اللہ کی پیشن گوئی، اللہ کا وعدہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے وعدہ کیا جب قرآن کو نازل کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1400 سال گزر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ عرب جو فصاحت و بلاغت میں ماہر تھے لیکن کوئی تحریف نہیں کر سکے، کوئی چھوٹی سی بھی آیت اس کے مقابلے میں بنا کر نہیں لا سکے۔ وہی اللہ پیشن گوئی اس چیز کی بھی کر رہا ہے کہ اسلام غالب ہو کر رہے گا۔ اور یہ جو فرش عزا باقی ہے، یہ جو ذکر حسین باقی ہے، یہ جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار اجڑ گئے لیکن یہ جو حسین کا دربار سجا ہوا ہے، یہ جو ذکر باقی ہے، تو ہم اس ذکر کو باقی رکھنے والے نہیں ہیں، ہماری بقا ذکر کے نتیجے میں ہے۔ تو عزیزان ایمان، اس لیے کہ پروردگار عالم بھی قرآن میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، محمد صلی علی محمد یا علی اللہم صلی علی محمد
वसल्लम। तो वही परवरदिगार आलम जो इरशाद फरमा रहा है, फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, हम जैसे गुनहगारों के लिए, मुसलमानों के लिए, आम मोमिनों के लिए कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो जब हम जिक्र करते हैं वो जिक्र करना और है, और जब खुदा जिक्र करता है तो वो जिक्र करना और है। हम जब जिक्र करते हैं तो हम फर्श पर करते हैं, इंसानों के दरमियान करते हैं, और जब वो रब्बे कायनात जिक्र किया करता है तो वो अर्श पर किया करता है और मलाइका के दरमियान किया करता है। तो वो रब्बे कायनात जब हम जैसों को मुखातिब करके ये कह रहा हो कि फस्कुरूनी अस्कुरुकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तो फिर वो अब्द जो अपने माबूद का जिक्र इस तरह कर रहा हो कि शिमल गर्दन पे खंजर चला रहा हो और 4 साल की बच्ची बाबा बाबा पुकार रही हो, दरे खैमा से बहन देख रही हो, और वो अब्द अपने माबूद का जिक्र इस तरह कर रहा हो कि सर सजदे में हो और कह रहा हो सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, तो उसके जिक्र का क्या मकाम होगा, उसके जिक्र को कैसे खुदा बाकी रखेगा। तो जाने इमाम, ये जो सैयदुल शुहदा ने इतनी अजीम कुर्बानी पेश की है ना, कि न कड़ियल जवान देखा, न शीर ख्वार देखा, ना वो बेटी जिसे नमाज शब की दुआओं में मांगा था, न उसकी मोहब्बत आड़े आई इस जिक्र के दरमियान कि जो वो खुदा का जिक्र कर रहा है। और कितना खतरनाक वक्त था, कितना मुश्किल वक्त था इस्लाम पर, कि जिस वक्त यजीद, देखिए 2-4 लोग अगर बहक जाए ना तो दीन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दीन पर कोई मुश्किल नहीं आया करती, लेकिन वो जो खुद को खलीफा रसूल कह रहा हो, जब वो बहकता है, जब वो गुमराह होता है, जब वो दीन का चेहरा बिगाड़ रहा होता है तो फर्क पड़ता है, फिर अल्लाह की हुज्जत में कयाम करना होता है। तो इसलिए जब वो चेहरा गैर देख रहे थे कि जो यजीद दिखाना चाह रहा था कि ये इस्लाम का चेहरा है, तो इस्लाम का चेहरा वो मकरू चेहरा नहीं था जो यजीद का चेहरा था। तो उस वक्त इमाम ने कयाम किया और बताया लोगों को कि बादशाहियत का और मलूकियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर दीन इस्लाम को समझना है तो मलूकियत को छोड़कर इमामत के दर पर आना पड़ेगा। दुरूद पढ़िए मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। अज़ान इमाम जितना मजमा है ना, हक अदा नहीं हुआ बिल्कुल भी सलवात पढ़ने का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। ये तो बहुत सुभान अल्लाह के नाम पर मेंबरे रसूल बिक रहा था तख्त शाम पर, दीन के उसूल ने नाइबे रसूल ने दोपहर में तख्त था जो कसरे शाम ढा दिया, दीन को बचा लिया फातिमा के चैन ने, अली के सलामत रहिए सलामत खुदा हुसैन ने दीन को बचा लिया, दीन को बचा लिया। नारे हैदरी शायद ना जा बुलंद से बुलंद तर सलवात ये रिवायत का एक जुमला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। यहाँ बस रिवायत का एक जुमला सुनती जाइए ताकि आप आइंदा जब आप दुरूद पढ़ेंगी ना तो हमेशा बुलंद आवाज से पढ़ेंगी। तो जब हम बुलंद आवाज से सलवात पढ़ते हैं ना तो पता ही क्या होता है, दिल से निफाक दूर होता है। कितना आसान नुस्खा है कि जब बुलंद आवाज से जब भी दुरूद पढ़ेंगे अल्लाह दिल से निफाक को दूर कर देता है और हमें मुनाफिकों में शामिल नहीं करता। इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है, कितना आसान सा नुस्खा है। अच्छा, अब हुवल लफ्ज़, हम लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा करके साए मुबारका को समझते हैं ना।
हुवल्लज़ी, अल्लाह वो है या वो अल्लाह है। कौन? कि जो पूरी कायनात को खल्क करने वाला है, जो ज़मान और मकान को पैदा करने वाला है, जिसके सामने सब मोहताज है वो गनी है, जिसके सामने सब बेबस हैं और वो मुख्तार कुल है, जो मौत और हयात को पैदा करने वाला है, जो जिंदा से मुर्दा को निकालता है, मुर्दे से जिंदा को निकालता है, जो रहमान भी है, रहीम भी है, जो कहार भी है, जब्बार भी है, जो हय्यो कय्यूम भी है, जो अला कुल्ल शैइन कदीर है। वो अल्लाह क्या कह रहा है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, के मैंने अपने रसूल को, अल्लाह वो है कि जिसने अपने रसूल को दीन हक के साथ भेजा और हिदायत के साथ भेजा। अब आयत ये नहीं कह रही कि पहले रसूल को भेज दिया बाद में हिदायत भेजी, पहले रसूल को भेज दिया फिर दीन हक भेजा। और हम इसी आयत मुबारका की रोशनी में अपना अकीदा बनाते हैं, इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि मैंने रसूल के साथ हिदायत को भेजा। तो यही फिर यहाँ से बुनियादी फर्क शुरू हो जाता है हमारे अकीदे में और दूसरे मकातिबे फिक्र के अकीदे में। हमारे यहाँ नबी जब दुनिया में आ रहा है, जिस वक्त पैदा हुआ है उस वक्त भी नबी है, इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि हादी बनाकर भेज रहा हूँ, दीन हक देकर भेज रहा हूँ, बाद में नहीं बना रहा। और उनके यहाँ क्या है कि 40 साल बाद नबी बने। तो यही बात है जो मैंने गुज़िश्ता मजलिस में भी बयान की थी, क्योंकि वहां चंद मोमिनात थी, इसलिए बात को दोहरा रही ताकि इससे रिलेटेड है तो आपका भी ये अकीदा क्लियर हो जाए कि देखिए यही बुनियादी फर्क है कि हमारे यहाँ पैदाइशी नबी होता है, उनके यहाँ 40 साल बाद नबी बनता है। इसलिए ये इल्जाम लगाया जाता है हम पर कि हम अली को नबी से बढ़ा देते हैं। हम अली को नबी से नहीं बढ़ाते, कतन नहीं बढ़ाते। बारह कहती हूँ ना, कोई शिया कर ही नहीं सकता, इसलिए नहीं कर सकता। सबसे पहले तो अली गरीबान से पकड़ लेंगे कि अगर हमने अली को नबी से बढ़ा दिया, अपने रसूल से बढ़ा दिया, तो सबसे पहले तो अली हमारा गरीबान पकड़ेंगे, इसलिए कि अली वो हैं जो सारी जिंदगी कहते रहे कि मैं मोहम्मद का अदना गुलाम। तो जो मौला ये कहता रहा हो वो मौला अपने गुलामों को उठा के बाहर फेंकेगा। अगर कोई गुलाम ये दावा करे तो हम तो ये दावा कर ही नहीं सकते। मगर क्या मसला है, बार बार कहती है कि देखिए उनका कसूर भी नहीं है, उन्हें यही पढ़ाया गया, यही समझाया गया कि नबी 40 साल बाद नबी बने और उसके बाद फिर जिब्राइल आए आयत लेकर, और उसके बाद जिब्राइल ने आके कहा कि पढ़िए। अब जब जिब्राइल ने कहा पढ़िए तो नबी कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं आता, और उसके बाद फिर तो आपको पता है कि क्या तफसील है कि सीने को चाक किया और दिल निकाला और जो कुछ किया फिर जैसे भी कुछ किया। तो ये है बुनियादी फर्क। फिर जब वो हमारे मुंह से मिंबरों से जब मौला के फजाइल सुनते हैं तो हम ये पढ़ रहे होते हैं कि आगोश रसूल में जब अली आए तो आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, तौरात सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ, कुरान सुनाओ। अभी कुरान नाज़िल भी नहीं हुआ और अली दावा कर रहे हैं, तो उनके तो सर पे से गुजर जाते हैं ये फजाइल कि हम तो 40 साल बाद नबी, वो कह रहे हैं कि 40 साल बाद नबी बने, और ये पढ़ रहे हैं कि अली आगोश रसूल में आके कह रहे हैं तो कुरान सुनाओ, जो कुरान अभी नाजिल भी नहीं हुआ। तो बस समझने की बात ये है कि नतीजा ये है कि हम जो अली के ये फजाइल पढ़ा करते हैं मिंबरों से, तो ये बताना मकसूद होता है, किसी को किसी से घटाना बढ़ाना मकसूद नहीं होता। बताना ये मकसूद होता है कि जिसका गुलाम ऐसा हो उसका आका कैसा होगा, बाबे इल्म ऐसा हो तो शहरे इल्म कैसा होगा। दुनिया शरफ बयां करती है सभी के, मगर जो अक्ल सलीम रखता है जानता है सिवा नबी के, नहीं है कोई अली से बेहतर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, मौला सलामत रखें। अली से बेहतर कोई नहीं है, बेशक। नारे हैदरी, अल्लाहुम्मा
मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। और हमारा तो नबी के लिए क्या, हमारा तो इमाम के लिए भी यही अकीदा है कि जिस तरह नबी पैदाइशी नबी होता है, इसी तरह इमाम भी पैदाइशी इमाम होता है। जब नबी दुनिया में आता है उस वक्त भी नबी, जब बचपन है तब भी नबी, जब जवानी है तब भी नबी, जब आखिरी सांस तक नबी। और इसी तरह इमाम भी दुनिया में आ रहा है तो भी इमाम है, बचपन भी इमाम है, और जवानी में भी, और बुढ़ापे में भी, और आखिरी सांस तक इमाम है। इसीलिए हम बेशक हम बहुत एहतराम करते हैं। इस वक्त ये फिजा कायम होनी चाहिए, वहदत मुस्लिमीन की जो फिजा है बेशक इसको कायम करना वक्त की जरूरत है। लेकिन हम बारहा कहते हैं कि हम आपके इमामों का बहुत एहतराम करते हैं, मगर कभी हमारे इमामों के मुकाबले पर मत आइए। अगर मुकाबले पर आएंगे तो फिर आपकी इज्जत आपके ही हाथ है। इमाम अबू हनीफा कितना बड़ा नाम, बेशक कोई शक नहीं है, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी में रहा। और कितना एहतराम करते हैं अहले बैत का, छठे इमाम का इतना एहतराम करते हैं कि जब 70 साल उम्र थी तो किसी ने उनसे उम्र पूछी तो उन्होंने क्या कहा था कि 2 साल। तो वो हैरान हो गया पूछने वाला कि 70 साल के और इससे उम्र पूछ रहे तो कह रहे 2 साल। तो हैरान हो गया, कहते हैं कि 2 साल आपकी उम्र है क्या? तो कहने लगी मैं अपनी उम्र वही गिनता हूँ कि जो मैंने छठे इमाम के जाफर सादिक की शागिर्दी में गुजारी है। तो इतना एहतराम करते हैं हमारे अहले बैत का, इमाम का। लेकिन जब मौला की शागिर्दी में मौजूद है, मस्जिद नबवी में है, और वहीं वहां पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बहुत छोटा सा सीन है, मस्जिद नबवी में वो भी मौजूद है। छोटे से सीन में ज़ाहिर है इमाम है, नमाज पढ़ रहे हैं, बचपन में भी इमाम है, नमाज पढ़ रहे हैं, वो देख रहे हैं नमाज पढ़ते हुए। अब जब वो नमाज से फारिग हो गए, मौला तो फिर करीब आए, आकर कहा, बड़ी तारीफ की, कहा बेटा बहुत अच्छी नमाज पढ़ी, इंतहाई वुज़ू और खुशू के साथ मैं तुम्हारी नमाज का एक एक पल को देख रहा था कि तुम कितनी बेहतरीन नमाज पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी तिलावत, क़िरात, सब कुछ बहुत अच्छा। लेकिन बेटा एक चीज का ख्याल रखना, वो क्या कि ऐसी जगह मत पढ़ा करो नमाज के जहां से लोग गुजर रहे हो। तुम्हारे और खुदा के दरमियान में लोगों को हायल नहीं होना चाहिए। अब इमाम बचपन में भी इमाम हुआ करता है ना, तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखा, कहा आपने कुरान नहीं पढ़ा? कुरान में परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है, वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, क्या हम तुम्हारी शहरक से भी ज्यादा नजदीक है। तो जो खुदा शहरक से भी करीब हो, उसके और इंसान के दरमियान में क्या कोई हायल हो सकता है? वो पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब मुझे तेजी से आगे बढ़ना है, इमाम के हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे को समझ रहे हैं ना। उसके बाद आयत जब आगे बढ़ती है तो क्या है, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, कि ये दीन हक तमाम अदियान पर गालिब आकर रहेगा। अब दीन तो गालिब आकर रहेगा, ये खुदा पेशन गोई कर रहा है। लेकिन इस वक्त जब हम हालत देखते हैं मुसलमानों की, तो अबतर से अबतर होती चली जा रही है। मुसलमान हर जगह मगलूब नजर आ रहे हैं। तादाद कितनी ज्यादा है इस वक्त, जो मैं आपको इस वक्त की जो तादाद बताऊं तो तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान, पूरी दुनिया में जो आबादी है मुसलमानों की तकरीबन 2.25 अरब के करीब है। और जो यहूदी हैं उनकी कितनी तादाद है? उनकी तादाद है कुल 2 करोड़। जिस वक्त इसराइल में है ना सिर्फ वो 1 करोड़ यहूदी है, और जो पूरी दुनिया में है वो सिर्फ 2 करोड़, और मुसलमान 2 अरब। यानी कम से कम फिगर भी जो थिंक टैंक के जो उनकी रिपोर्ट है, कम से कम फिगर भी अगर देखा जाए ना तो 1 अरब 57 करोड़ मुसलमान, कम से कम इतने मुसलमान हैं। 57 इस्लामिक स्टेट्स मौजूद है, और मुसलमानों की हालत देखिए, वो टोटल 2 करोड़ है, यानी कितना 0.2% पूरी कुल आबादी का हिस्सा। और मुसलमान कितने? 25% कुल आबादी का हिस्सा है ना। तो क्या रेशो क्या होता है इस मुनासिबत से? क्या रेशो है कि 1 यहूदी पर 100 मुसलमान, 1 यहूदी पर 100 मुसलमान। और आज आप डरने की हालत देखिए, इस वक्त फलस्तीन के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा, 1 यहूदी को मारने के लिए 100 मुसलमान
इसी لیے कहती हूँ ना बच्चियों से कि करंट अफेयर से बाखबर रहा कीजिए कि उसके बावजूद हालत क्या है। तो देखिए ये क्यों है कि तादाद में इतने ज्यादा हैं, और ये नहीं है कि मुसलमानों की किलिंग हुई है, यहूदियों की कितनी ज्यादा किलिंग हुई है आपको पता है। हिटलर के जमाने में आधी से ज्यादा उनकी पॉपुलेशन खत्म हो गई थी, आधे से ज्यादा यहूदियों को मार दिया गया था, हमसे ज्यादा किलिंग हुई है, मगर कैसे सरवाइव किया, कैसे आज पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, इल्म का दामन थामा। आपको पता है ना कि इस वक्त यहूदी जो है ना, जब उनके यहाँ औरतें जब हामला होती हैं उस वक्त से वो तालीम का बंदोबस्त शुरू कर देते हैं। उनकी जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, खवातीन होती हैं ना, वो उनसे उनको डिफरेंट पजल्स देते हैं, मैथमेटिक्स के डिफरेंट क्वेश्चन उनसे सॉल्व करवा रहे होते हैं, कैलकुलेशन, ताकि उनका जो बच्चा है उसके जो ब्रेन बूस्टिंग का काम है वो रहमे मादर में शुरू कर देते हैं। उनको पता है कि बस इसके जरिए छा सकते हैं, तो सारी यूनिवर्सिटीज पर वो काबिज हैं। सिर्फ 2 करोड़, और मुसलमान जो 2 अरब के करीब हैं उनकी हालत देखिए, जहालत में अपनी आखिरी हदों को पहुंचे हुए। तो क्या है कि देखिए एक रास्ता होता है ऊपर जाने का, एक रास्ता होता है नीचे आने का। अब जो ऊपर की तरफ चलेगा वो ऊपर चढ़ेगा, जो नीचे की तरफ चलेगा वो नीचे उतरेगा। सीढ़ी एक ही होती है ना, उसी सीढ़ी से ऊपर भी चढ़ सकते हैं, उसी सीढ़ी से नीचे भी उतर सकते हैं। इख्तियार है ना हमारे पास, हम चाहें तो ऊपर चढ़े, हम चाहें तो नीचे उतरते रहें। और हम किसके मानने वाले हैं कि जिसके नाम के माना ही बुलंदी के हैं। हम बाबुल इल्म के मानने वाले, हम इल्म की पस्तियों में जाते जा रहे हैं, वो इल्म की बुलंदियों पर जाते जा रहे हैं। इसीलिए तो बार बार कहती हूँ कि अली का नाम भी अली, अली का काम भी अली, अली का मकाम भी अली, अली की गुफ्तगू भी अली की जुस्तजू भी अली का मिजाज भी अली की मेराज भी अली की गुफ्तार भी अली का किरदार भी अली की तलवार भी अली का मयार भी अली की मस्जिद भी अली का मिंबर भी अली की मस्जिद भी अली का महबर भी अली का नबी भी अली, और अली का खुदा भी अली। उन्होंने तो इल्म का दामन थाम लिया, और मैं बारहा कहती हूँ ना कि इल्म रोशनी है और जहालत अंधेरा है। तो जो इल्म का दामन थामेगा वो बुलंदियों की तरफ जाएगा, और जहालत का दामन जो पकड़ेगा वो पस्ती और जिल्लत की तरफ जाएगा। एक काम उन्होंने ये किया। दूसरा काम यहूदियों ने क्या किया कि फाइनेंस को अपने हाथ में ले लिया। जितने कारोबार हैं इस वक्त आप देखिए, जितनी चेन्स हैं सब यहूदियों के हाथ में है। जबकि हमारा दीन हमें ये कह रहा है कि रिस्क के ये जो 10 हिस्से हैं इसमें से अल्लाह ने एक हिस्सा नौकरी में रखा है और 9 हिस्से कारोबार में रखे हैं। और मुसलमान आप देखिए कि कितने मुसलमान कारोबार की तरफ आते हैं, ज्यादातर नौकरी पेशा है, और यहूदी सब कारोबार करते हैं, वो किसी की गुलामी नहीं करते, वो कारोबार करते हैं। क्योंकि हमारा दीन हमें ये बता रहा है कि इसमें कामयाबी है, तो इसलिए वो कामयाब है। मगर एक बात याद रखिएगा, वो कुछ भी कर लें, वो कुछ भी कर लें, वो जात कादिरे मुतलक है, वो जुल्म के निजाम को कभी परवान नहीं चढ़ाती। ये जो अंदर की बात है, इसराइल में लोग अंदरूनी तौर पर नफ्सियाती तौर पर प्रॉब्लम्स का शिकार हो रहे हैं। क्यों? इतनी तरक्कियों के बावजूद क्यों? इसलिए कि उनकी जहनियत है, जो सूरह बकरा में परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है ना कि ये कभी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। तो वो जो दावा करते हैं कि जन्नत हमारी जागीर है और हम सबसे ज्यादा अल्लाह की पसंदीदा कौम है और हम दुनिया पर भी हुक्मरानी के लिए आए हैं, जन्नत भी हमारी जागीर है, हमें थोड़े से अरसे के लिए हम अपनी सजा काटेंगे, उसके बाद तो हम जन्नत में हैं। तो फिर वो जो इतने जन्नत के तलबगार हैं और इतना जन्नत को अपनी जागीर समझते हैं, तो मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते? भाई जन्नत में तो जब ही जाएंगे ना जब
موت کی تمنا کریں گے تو موت کی تمنا نہیں کرتے. یہ وجہ ہے کہ ذہنی طور پر سکون کی حالت میں نہیں رہتے. تو اذان امام اللہ یہ جو پیشن گوئی کر رہا ہے نا کہ اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا، مگر کیا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. اور ہم جلد باز ہیں، ہم سے انتظار نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا پروردگار سے کہ بارے الہا انہی میں سے ایک رسول کو بھیج دے جو انہیں آیات الہی کو پڑھ کر سنائے، انہیں علم سکھائے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرے. تو پھر قرآن میں ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے. تو جب اللہ نے دعا قبول کر لی تو پھر حضور کو بھیج دے. بھائی فوراً دعا تو قبول کر لی قرآن میں، مگر حضور کو کتنے عرصے کے بعد بھیجنا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے 2000 سال کے بعد. 2000 سال. اسی طرح ہمیں نظر آتا ہے کہ جناب موسیٰ دعا کر رہے ہیں بارگاہ الہی میں کہ پروردگار مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دے دے، اور اللہ اسی وقت قبولیت کی مہر لگا رہا ہے، مگر نتیجہ کب آ رہا ہے؟ 40 سال کے بعد. ہم بھی بےتاب ہو جاتے ہیں نا، ہم تو دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ ہماری دعا ہی قبول کرتا ہے. وہ معصوم ہے، وہ نبی ہے، وہ دعا کر رہے ہیں، اللہ مہر بھی لگا رہا ہے قبولیت کی، 2000 سال کے بعد نتیجہ دے رہا ہے. موسیٰ دعا کر رہے ہیں 40 سال کے بعد نتیجہ دے رہا ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ دعا قبول کر لی. ہماری دعاؤں کو بھی قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے، نتیجہ دیر میں آتا ہے، ہم بے چین ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم حکمتوں کو نہیں سمجھتے نا، مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. تو اذان امام اسی طرح جب یہ دعا نبی کر رہے ہیں تو انتظار. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 2000 سال بعد اللہ آخری رسول کو بھیج رہا ہے تو ہمیں بھی تو انتظار کرنا چاہیے نا. ابھی تو حضور سے وعدہ کیے ہوئے 1500 سال ہی گزرا، 500 سال تو ویسے ہی باقی ہیں. تو پھر ہم تو منتظر ہیں نا، ہمیں تو ابھی انتظار کرنا ہے. ابھی کس بات کی بے چینی ہے؟ ہمیں یہ تو پتا ہے نا کہ وہ جو پردہ غیبت میں ہے وہ آئے گا تو پھر اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، پھر کوئی اور دین غالب نہیں ہو سکتا. نہیں چلے جی محمد محمد امام پیشن گوئی کے حساب سے علامتیں ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل سامنے آتی چلی جا رہی ہیں نا. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ پاکستان میں ہر طرف دیواریں کالی ہوتی تھی، شیعہ کافر ہر دیوار پہ لکھا ہوتا تھا، دیواروں کو سیاہ کر دیا جاتا تھا صرف اسی ایک جملے سے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ امام کعبہ کا فتویٰ آ گیا کہ بس بہت ہو گیا، اب یہ ختم ہونا چاہیے تکفیریت. اور امام کعبہ کب ایسا فتویٰ دیتے ہیں جب ظاہر ہے کہ بادشاہ کی طرف سے ان کو حکم ملتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں دیتے نا. تو اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہمارے یہاں غلبہ اسلام کا تو نظر نہیں آتا پاکستان میں، لیکن سعودی عرب کا اور امریکہ کا غلبہ سب سے زیادہ نظر آتا ہے. اسی طرح علامتیں ظاہر ہوتی جاتی تھی کہ وہ جو سعودی عرب جو ایران کا سب سے بڑا مخالف، اب ہم نے دیکھا کہ وہاں کا بادشاہ خود چل کر اور آیا وہاں ایران کے رہبر معظم سے ملنے کے لیے. تو علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو عزیزان امام بس یہ جو غلبہ ہونا ہے نا پروردگار عالم اسی طرح جس طرح آخری رسول کو دعا کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھیجا، اسی آخری رسول کو غدیر خم کے مقام پر یہ حکم دے رہا ہے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین پہنچانے کا سلسلہ یہاں ختم ہو رہا ہے، اور وہ جنہوں نے دین کو غالب کرنا ہے ان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. تو وہاں غدیر خم میں رسول کیا اعلان کر رہے ہیں کہ من کن تو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. اب جس نے ماننا ہے وہ مانے، جس نے نہیں ماننا ہے وہ نہ مانے. ہم تو ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں علی دلوں کا مکین بھی ہے، علی امام مبین بھی ہے، علی سراپا ہے کل ایمان، وجہ تکمیل دین بھی ہے، علی کا چہرہ خدا کی صورت، علی ہر ایک سے حسین بھی ہے، علی بھی علی ولی بھی رسول کا جانشین بھی ہے، علی بھی علی ولی بھی رسول کا جانشین بھی ہے. تو عزیزان امام ہم تو اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جو آخری جانشین ہے جب وہ آئے گا وہ پردے غیبت میں ہے. تو عزیزان امام وہ جو پردے غیبت میں ہے، جو آخری مظہر خدا ہوگا، رسول صرف ایک علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر رہے ہیں وہاں،
12 की विलायत का ऐलान कर रहे हैं, 12 जानशीनों का। अगर एक अली होता तो हजम हो जाता आसानी से, लेकिन रसूल तो रास्ता बंद कर रहे हैं कयामत तक के लिए। खिलाफत का रास्ता बंद है, अब कोई नहीं बैठ सकता इस गद्दी पर, रसूल के जानशीन बैठेंगे। और ये तो हम सब जानते हैं कि जो भी तख्त पर बैठा, मगर दुनिया ने ये इकरार किया कि तख्त पर कोई भी काबिज हो जाए, दिलों पर हुकूमत बस अहले बैत किया करते हैं। तो पढ़िए मोहम्मद इमाम ज़माना नाराए तलवार रसूल जो आखिरी जानशीन का जब ऐलान कर रहे हैं तो 12 को एक एक का नाम लेकर बता रहे हैं, गदीर खुन में सिफात भी बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, और जो आखिरी है उसका तारुफ किस तरह करा रहे हैं रसूल कि इसमहु इसमी कुन्नियतहु कुन्नियती, कि उसका नाम मेरे नाम पर होगा, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत पर होगी, उसकी सूरत मुझ मोहम्मद जैसी होगी, उसमें ताकत अली जैसी होगी, उसमें हिकमत हसन जैसी होगी, उसमें शुजाअत हुसैन जैसी होगी, उसमें इल्म ज़ैनुल आबिदीन जैसा होगा, उसमें तबलीग मोहम्मद बाकर जैसी होगी, उसमें सदाकत जाफर सादिक जैसी होगी, उसमें सब्र मूसा काजिम जैसा होगा, उसमें रज़ाइयत अली रज़ा जैसी होगी, उसमें नकावत अली नकी जैसी होगी, उसमें तकवा मोहम्मद तकी जैसा होगा, उसमें हैबत हसन अस्करी जैसी होगी, और उसमें गैबत खुदा जैसी होगी। देखिए इस वक्त जो हालात हैं, जो माहौल है, इसमें हमें बारहा बस इस पर तवज्जो देनी है कि हमें वो माहौल बनाना है कि हम आपस में भी इत्तेहाद से रहें और मुसलमान भी इत्तेहाद से रहें। इस वक्त बहुत जरूरी है इत्तेहाद, इसलिए कि खुमैनी साहब का वो जुमला आपको याद होगा ना कि जो उन्होंने कहा कि इस वक्त मुसलमान हाथ खोलने और बांधने पर झगड़ा कर रहे हैं, दुश्मन हाथ काटने पर गौर कर रहा है। तो जाने ईमान इस वक्त बहुत जरूरत है, और आप यकीन कीजिए बहुत से अहले सुन्नत ऐसे हैं कि जिनके दिलों में इंतहाई अकीदत है अहले बैत की, बहुत मोहब्बत करते हैं, और जो नहीं करते हमें उनकी जरूरत नहीं है, जो नहीं करते उनके कुल्लूब पाक नहीं है, तहारत नहीं है, दिलों में निजासत है, और निजासत को अल्लाह ने खुद पंजतन से दूर रखा है। अहले बैत के दर पर नजिस आ ही नहीं सकता, तो उनकी बात ही नहीं कर रही, उनकी बात कर रही हूँ कि जो दिलों में अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। और बस इसी से रिलेटेड एक वाकया छोटा सा जहन में आ गया, बस वो सुनाती हूँ, मैं मसाइल से मुत्तसिल हो जाऊँ। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा ताखीर से मजे शुरू हुई है और आप सबकी थकावट का सबका अंदाजा है मुझे, लेकिन कोशिश करती हूँ कि कुछ हक अदा हो सके मिंबर का। मैं किसी काबिल तो नहीं हूँ। देखिए डॉक्टर कल्ब सादिक साहब इस वाक़े को बारहा, उनकी मजालिस अगर आप सुनती हो तो बारहा उन्होंने इस वाक़े को सुनाया है, और वो आपको पता है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए वो बहुत काम करते हैं। परवरदिगार आलम उन्हें गरीब पे रहमत करे, और उन्होंने इतना काम किया है तशय्युअ के लिए भी, जो वो बड़े खुशकिस्मत है हिंदुस्तान वाले कि वो वहाँ मौजूद थे। काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसे उलमा मौजूद होते कि जिनके पास बहुत कुछ था, बहुत कुछ उनके हाथ में, लेकिन उसके बावजूद आने वाली जनरेशन के लिए वो कुछ नहीं करके गए जो कल्ब सादिक साहब करके गए। और इतने यूनिवर्सिटीज और स्कूल और इतना तलबा के लिए उन्होंने काम किया, और हमेशा दो चीजों पर उन्होंने जोर दिया कि जो तशय्युअ है ना, वो हमेशा कहते थे कि दो चीजों को दूर करो खुद से, एक जहालत को और गुर्बत को। ये दो चीजें अगर ये हमारी कम्युनिटी में नहीं होनी चाहिए, ना जहालत और ना गुर्बत, ये दोनों सबसे बड़ा फसाद है, इसी से सारे फसाद खड़े होते हैं। रज़ा इमाम इस चीज के लिए उन्होंने बहुत काम किया। तो वो सुनाते हैं ख्वाजा हसन निजामी का ये वाकया कि ज़ाहिर अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते हैं ख्वाजा हसन निजामी, और दिल्ली में एक जश्न मौलूद काबा के मौके पर एक जश्न हो रहा था जो कि एक
अहले सुन्नत ने ही ऑर्गेनाइज किया था, अली सिद्दीकी उनका नाम था। उन्होंने ये ऐवान गालिब में बहुत बड़ा हॉल था, उसमें ये जश्न हो रहा था, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत ने ऑर्गेनाइज किया था तो ज्यादा जो मुकर्ररीन थे वो अहले सुन्नत से ताल्लुक रखते थे। तो वहाँ डॉक्टर कल्बे सादिक साहब भी इन्वाइटेड थे और ये ख्वाजा हसन निजामी भी थे। और वहाँ क्या हुआ कि जब मुकर्ररीन स्टेज पर आते थे, आके मौलाए कायनात के बेशुमार फजाइल मनाक़िब बयान कर रहे हैं सब कुछ, और उसके बाद मगर आखिर में जश्न हो रहा है, जश्न मौलूद काबा, लेकिन जब आखिर में इख्तिताम किस पे करते थे, इस जुमले पर किया करते थे कि सारे फजाइल मनाक़िब अली के सराखों पर, मगर अली काबे में पैदा नहीं हुए। ये बात गलत है कि अली काबे में पैदा नहीं। जब 4-5 मुकर्ररीन मुसलसल एक के बाद एक, क्योंकि आपको पता है ना कि बहुत बड़ी एक तादाद है वहाबियों की जो नहीं मानती कि अली काबे में पैदा हुए, तो जब मुसलसल यही सिलसिला जारी रहा और वो ये कहते हुए मुसलसल उतरते रहे स्टेज से, तो ख्वाजा हसन निजामी स्टेज पर गए। कैसे हक अदा करते हैं जो तशय्युं से ताल्लुक ना भी रखते हो लेकिन दिल पाक हो और अहले बैत की मोहब्बत दिल में हो। तो जब वो स्टेज पर गए तो कहने लगे, मैं मुसलसल मुकर्ररीन की गुफ्तगू सुन रहा हूँ कि जो स्टेज पर आकर मुसलसल ये कह रहे हैं, आखिर में ये जुमला कहकर बात खत्म करते हैं कि अली कुछ भी हो मगर अली काबे में पैदा नहीं हो। कहा बस मुझे ये बताइए अली पैदा हुए हैं या नहीं पैदा हुए? इतना तो बता दीजिए कि इस पर यकीन है कि अली पैदा हुए हैं। अगर पैदा हुए हैं तो वो जगह बता दीजिए कि जहाँ अली पैदा हुए हम उसी को काबा बना लेंगे। खुदा की कसम काबा की दीवारों ने हद से कहा मुझे तवाफ के काबिल बना रहे कहने का मकसद ये है कि जो इस तरह जब मौला का दिफा करते हैं, मौला किसी का एहसान नहीं रखते। फिर मौला कैसे दिफा करते हैं? थोड़े ही दिन के बाद डॉक्टर कल्बे सादिक साहब से फिर उनकी मुलाकात हो गई, तो कहा फिर वही उन्होंने दोहराया वो किस्सा। तो कल्बे सादिक साहब से कहने लगे, आपको पता है उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? उसके बाद मेरे साथ ये हुआ कि मैं हज पर गया, और जब मैं हज पर गया मस्जिद नबवी में ज़ियारत करके ज़री की, उसके बाद में उल्टे पैरों वापस हुआ। जैसे हम भी ज़ाहिर है जब ज़री की ज़ियारत करते हैं तराम के तौर पे हम उल्टे पैरों बाहर आते हैं ना, उसकी तरफ पीठ नहीं करते। तो कहते हैं कि हमें उल्टे पैरों वापस हो रहा था कि मुझे एक शिल्पे ने आके पकड़ लिया। अब आके कहा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे, मैंने कहा कि क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टे पैरों वापस जा रहा हूँ। तो कहने लगे नहीं मेरे साथ वापस चलो। वो शुल्ता कहता है मेरे साथ वापस चलो ज़री तक और उधर पीठ करके वापस आओ। कहा ये तो मैं नहीं करूंगा। कहा फिर थाने चलना पड़ेगा, फिर पिटाई होगी। कहा हाँ पिटिएगा लेकिन ये नहीं करूंगा कि रसूल की ज़री की तरफ पीठ करके वापस आऊं। तो अब बहस शुरू हो गई। कहा कि फिर तो थाने चलना पड़ेगा। अब ये इतनी जोरों शोर से बहस हो रही है कि लोग 2-2 4-4 करके लोग जमा होना शुरू हो गए। पूरे चारों तरफ से लोगों ने घेर लिया। कोई 250-300 का मजमा जमा हो गया। अब जब ये मजमा जमा हो गया, अब ये देख रहे हैं कि इनमें से मैं किसको पहचानता हूँ, इसमें से कौन है जो हिंदुस्तान से है। कोई भी शक्ल नहीं नजर आ रही कि जो जिसको पहचानते हो। तो उसके बाद हैरान हो रहे हैं। लेकिन जब इतना मजमा इकट्ठा हो गया, लोगों ने कहा कि आप इसको जानते नहीं, आप इनको जानते नहीं हो कि ये कितने बड़े आलिम दीन है। तो वो शुरते ने जब देखा कि सारे शोर करना शुरू हो गए तो वहां से भाग गया। अब जब वो भाग गया तो अब उन्होंने लोगों की तरफ देखा, मुखातिब होकर कहा आप मुझे जानते हैं, मुझे पहचानते हैं? कहा कि नहीं आपको जानते नहीं है लेकिन आपकी कैसेट सुनी है उससे जानते हैं आपको। वैसे हम नहीं जानते, हम हिंदुस्तान में नहीं रहते, लेकिन आपकी कैसेट सुनी थी कि जिसमें आप मौला अली का दिफा कर रहे थे। तो कल्बे सादिक साहब ने उनसे क्या कहा कि आपने ये वाकया सुनाया, अब आप मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिए कि वो जो लोग आपके इर्द गिर्द जमा हो गए थे दर हकीकत वो आपका दिफा नहीं कर रहे थे बल्कि मौला अली दिफा कर रहे थे, कि जिनका दिफा आपने इतने बड़े मजमे में किया था। दूर पड़िए
मोहम्मद वअज्जिल फरजहम। बस अज़ादारान इमाम, मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने इतनी तवज्जो के साथ मौला के फ़ज़ाइल को सुना। बस यही तवक्को करती हूँ कि इसी तरह हक़ अदा करने की कोशिश करेंगी मसाइब में भी, क्योंकि बस ख़त्म हो गए ये अय्याम अज़ा और बस 4-5 दिन यही पुरसे रह गए हैं अज़ादारान इमाम। हमेशा हमेशा यही लगता है, यही महसूस होता है अय्याम अज़ा के इख्तिताम पर मौला हमसे हक़ अदा नहीं हुआ। मौला जिस तरह नौकरी करना चाहते थे उस तरह नौकरी भी नहीं कर सके। मौला जिस तरह रोना चाहते थे उस तरह रो भी नहीं सके। जो फर्श अज़ा का हक था वो हमसे अदा नहीं हुआ। ऐसा महसूस होता है ना, अभी मुहर्रम का चांद नजर आया था अज़ादारान इमाम, अभी लगता है अज़ा खाने सजाए गए थे, अभी फर्श अज़ा बिछनी शुरू हुई थी और अब इख्तिताम आ गया। ए मेरी बीबी, हमसे हक अदा नहीं हुआ। न जाने कौन अगले बरस होगा और कौन नहीं होगा। बस ये दुआ करती हूँ फर्श अज़ा के सत्ते से परवरदिगार सबको सलामत रखे, हमें इतनी सांसें अता करे कि हम अगले साल फिर एक साथ फर्श अज़ा पर आकर अपनी शहजादी को पुरसा पेश करें। ए मेरी बीबी, पूरे साल इंतजार करते हैं कि अय्याम अज़ा आएंगे। बीबी फर्श अज़ा बिछाएंगे, आप हमारे घर मेहमान आएंगी। इसके अलावा तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है ना कि बीबी हमारे घर मेहमान आ जाए। कहाँ गरीब का घर, कहाँ हुसैन की मौत। अज़ादारान इमाम, ये जो अय्याम है ना रबीउल अव्वल के अय्याम, ये किसी तौर पर भी आशूर से कम नहीं है। ये इतने सख्त अय्याम है अज़ादारों कि जिस सैयदा के लिए वो कयामत के दिन है कि जो मुसीबतें हम अय्याम फातिमिया में पढ़ते हैं वो मुसीबतें इस वक्त सैयदा पर गुजर रही है। अज़ादारों, यकुम रबीउल अव्वल से 8 रबीउल अव्वल तक वो कौन से अय्याम है, वो कौन सी मुसीबतें हैं जो सैयदा पर नहीं गुजरी। मुझसे कभी मिंबर से मेरी शहजादी की ये मुसीबत नहीं पड़ी जाती कि मेरे बीवी के चेहरे पर जो निशान था वो निशान कैसे पड़ा कि जिसे पूरी जिंदगी सैयदा अरे चादर के कोने से अली से छुपा कर रखती रही। अरे दूसरी मुसीबत सैयदा की, दूसरी मुसीबत वो मुसीबत कि जब जलता हुआ दरवाजा अरे सैयदा पर गिराया गया। पूरी जिंदगी जब तक जिंदा रही मेरी बीबी सीधे हाथ से तस्वीर नहीं पढ़ सकी। अजरकुम आपको किसी में नहीं सिवाय हुसैन की। मेरी बीबी हमसे नहीं हुआ। अरे हमसे कहते हैं अब तो रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया, अब क्यों रो रहे? अरे अब क्यों सिया लिबास पहनाए? नबी की विलादत का महीना, अरे कैसे 8 दिनों में हम घरों में पंखने जलाए, अरे कैसे जश्न मनाए। जरा अपनी तारीख को उठाकर पढ़ो तो सही, जिस नबी का जश्न मना रहे। अरे ये 8 दिन उस नबी की औलाद पर, अरे वो सैयदा कि जिसके लिए नबी ने कहा फातिमा अरे सैयदा पर कौन सी मुसीबत में ढाई गई। अरे पहली रबीउल अव्वल, अरे परदेसी वतन आ गए, अहले बैत को रियायत मिल गई। अरे जिंदा से
जिस शहर में शहजादियों की तरह रही थी, आज बालों में खून, बाजुओं पे रस्सियों के निशान, अरे काफिला बाहर ठहरा रहा। सैयद सज्जाद ने कहा, बशीर जाकर पहले खबर करो, पहले बात वापस आ गए। अरे बशीर ने जाकर निदा दी, फातिमा हुसैन ने करबला, हुसैन ने करबला। जरा तस्वीर कीजिए कि जो परदेश में रहते हैं, ये जिनके घरों में से कोई परदेश में रहता है, जब परदेश से वतन वापस आ रहे होते हैं, अरे क्या एहसास होता है दिल में, क्या तड़प होती है। अरे अपनों से मिलने जा रहे हैं, अपने इंतजार कर रहे होंगे, किसी की माँ मुंतजर होती है, किसी का बाप। अरे जरा तस्वीर करो, जरा तस्वीर करो। अरे ज़ैनब जो सब कुछ लुटा कर आ रही है, अरे रबाब का तस्वीर करो कि जिसकी गोद भी उजड़ गई, जिसकी कोख भी उजड़ गई। अरे कौन इंतजार कर रहे होंगे, इन बीवियों के क्या एहसास होंगे। दूसरा एहसास क्या होता है जब परदेसी वापस आते हैं। आप जानती हैं, आप में से जो कोई भी परदेश में रहता होगा या जिसके घर वाले रहते होंगे, आने से पहले क्या तैयारी होती है। अरे माँ के लिए ये तोहफा खरीद लो, भाई के लिए ये ले लो, बहन के लिए ये ले लो। अरे सब ये साथ रखते हैं। अरे जरा तस्वीर करो, ये परदेसी जो हो रहे हैं, अरे क्या तोहफा लेकर आ रहे हैं। अरे ज़ैनब क्या तोहफा लेकर आ रही है, मम्मी फरमा क्या तोहफा लेकर आ रही है, रबाब के पास क्या तोहफा है। अरे जब शहर में दाखिल हुए ना, शहर में दाखिल हुए, उम्मे फरमा ने कहा सबसे पहले बकरिया जाऊंगी। अरे तोहफा क्या है, एक गठरी है आज़ादारों, अरे सीने से लगाया हुआ है। अरे जब गई है बकरिया में हसन के खबर पे, अरे गठरी खोली, अरे कासिम का खूब बड़ा कुर्ता वाली की खबर पर डाल दिया। अरे तोहफा लेकर आई है परदेश से। अरे रबाब के पास भी तो गठरी है, रबाब क्या तोहफा लेकर आई है। अरे गठरी में अली असगर के झूले की जमी हुई लकड़ियां, अरे वो तबरुका जो मिले थे सकीना के कानों के नन्हे नन्हे गोश वाले, किसको जाकर दे, वाली तो करबला में छोड़ आई। अरे ज़ैनब नाना की कब्र पर आ गई। नाना तेरे सर के आज़ादार आए। नाना तेरे हुसैन के ज़व्वार आए। नाना मैं भी एक तोहफा लाई हूँ। अरे हुसैन को खूब बड़ा कुर्ता नाना की खबर पर डाल दिया, रसूल की खबर पर लफ्ज़ तारी हुआ। बस ये जुमला रोने के लिए काफी है कि ज़ैनब ने खबर रसूल पर मुंह रखा और इस्सा से कहा नाना अगर नामहरमों का मजमा न होता, अरे ज़ैनब दिखाती, अरे बाजुओं
کیسا تحفہ دیا، ارے زینب کی پشت زخمی ہے، محمد اللہ قوم ظالمین، میری بیوی میرے قصہ کو قبول کی، بیوی ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا، میری بیوی ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا، میری بیوی بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے سب کا شفاء کاملہ عطا فرما، بار الہ جو بے اولاد ہیں تجھے واسطہ ہے علی اصغر کا، شہزادی سکینہ کا، نیک اور صالح اولاد عطا فرما، بار الہ پاک پروردگار جن جن گھروں میں صف عزائے حسینی بچھائی جاتی ہے، پروردگار ان گھروں کو ہمیشہ شاد و آباد رکھنا، بار الہ ہمیشہ اس فرش عزا کو اسی طرح قائم و دائم رکھنا، ہماری نسلوں میں قائم و دائم رکھنا، بار الہ پاک پروردگار کسی غم میں نہ رلانا سوائے غم حسین، بار الہ پاک پروردگار سب دعاؤں سے بڑی دعا پروردگار ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، بار الہ ہمارے وارث کو بھیج دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے سچے ناصرین میں شامل فرما، سچے خدمت گزاروں میں شامل فرما، سچے اطاعت گزاروں میں شامل فرما، ربنا تقبل منا منك انك انت السميع العليم ماتم حسین۔